यही रीजन है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन फर्स्ट क्लियर हो गया, एंड दैट्स व्हाट आई टेल ऑल माय एस्पिरेंट्स कि वो आपको आपकी बकेट में वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि बाकी. So hi everyone, welcome to Practice Monks channel once again, and today we have someone very special with us. So some of you might already know her. So today we have Karishma Singh with us, and she has been guiding a lot of aspirants via our YouTube channel. You can always check that out. So hi Karishma, how are you? I'm good. How are you? Yeah, I'm great. So, Karishma, can you just, for starters, if you can just communicate to the students about your background, कि आपका background कैसा था, how did you finally started with banking preparation, and how was the journey like? Okay, so I completed my graduation in 2017. I did it with chemistry honors, and then I did my master's. I completed it in 2019, and when I completed it, I had no plans of coming into banking sector. I was exploring my options, and I was planning to do PhD and all. But when I gave like my net examination in December, I got really bad score, and that's when I thought maybe I should search for other options as well. And that's when lockdown happened, and I was looking for other options, and I got to know about banking. I had an idea, but then I started studying. I really liked the syllabus. It was not boring because I was studying chemistry for such a long time that somewhere I got to saturation point, but then it was something new, so it really interested me. And the process, I saw that it was very quick, so that's attracted me a lot. And then I started my preparations in late March and April, starting of 2020, and that's how my journey began in banking. Okay, yeah, so that's great. So now I'll ask, मैं कुछ questions पूछना शुरू करूँगा. They will have a very separate element attached to it. I think it will help us understand the kind of problems you faced and how you solved them. What is your overall approach towards these kind of exams? So when you started out, when you started preparing, जब आपने decide कर लिया कि मुझे इन exams के forms भरने हैं, and I'll start with it. And obviously आपका जो background है वो completely क्योंकि आपने chemistry honors किया है, तो बहुत ही different background से आप आते हो. Generally aspirants की ये जो field है उसमें बहुत clear होता है कि उन लोगों को पता होता है कि वो graduation करेंगे, उसके बाद they'll start preparing. कुछ लोग तो last year में ही शुरू कर देते हैं, लोग ऐसे भी होते हैं. So obviously you had no idea कि यहाँ पे कहाँ से help मिलेगी, कोई coaching join करनी चाहिए, क्या करना चाहिए. So what were the first days like? कि मतलब पहले के जो if I say कि पहला first 30 days, how would you describe those first 30 days? फर्स्ट 30 डेज आई थिंक स्टार्टिंग में तो मैंने यूट्यूब सर्च किए, मोस्ट यूट्यूब सर्च मैंने किया, और जितने भी वीडियोस मुझे अवेलेबल मिले, मैंने सारे वो टॉपर्स वाले वीडियोस सब देख लिए. और व्हाट आई डिड, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत वर्क किया कि somebody I was watching some interview, उसमें वन ऑफ द टॉपर्स सेड कि बैटल से पहले ना उसकी प्रेपरेशन कर लो. और ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत ज्यादा मसल हार्डवर्क करने से बजाय है कि यहाँ से हार्डवर्क करो. So I think that really hit me, और वो मुझे लगा कि he is right कि एग्जामिनेशन तो होगा लेकिन 50% ऑफ दिस सिचुएशन यही क्लियर हो जाएगी अगर मैंने स्ट्रैटेजी राइट अप्रोच पकड़ ली. तो स्टार्टिंग की 30 डेज वही थे. एंड आई वेंट, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि फर्स्ट डे पे मेंस शुरू कर दो, सो आई डिड नॉट बिलीव इन दैट. और मैंने किया कि पहले आई वेंट फॉर द सिलेबस. मैंने एक सिलेबस अपना निकाला, प्रिंट आउट मैंने पेस्ट किया अपनी वॉल पे, एंड टिक मार्क लाइक टिक बाय टिक आई टिक ऑल द पेजेस की हाँ ये सिलेबस है, नाउ आई कंप्लीटेड इट. अब मुझे पता है एटलीस्ट कि क्या चल रहा है. तो आई थिंक विद इन 1 or 2 weeks आई ओनली कंप्लीटेड माय सिलेबस. बट यस, करंट अफेयर्स मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था. तो 30 days वर लाइक जस्ट गोइंग बिहाइंड द सिलेबस एंड जस्ट एक्सप्लोरिंग द फील्ड. Fine. Okay. So one thing you mentioned, मतलब जो I think is very true, कि 50%
of the battle जो इसमें लड़नी होती है, that comes with preparation strategy, and I think that is what most of the aspirants get wrong. तभी शायद 2 attempts लग जाते हैं, 3 attempts लग जाते हैं. उनको शायद दूसरे अटेम्प्ट तक आते आते रियलाइज होता है कि पहले ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये गलतियां थी, इस चीज में जल्दबाजी करी, जीए नहीं पढ़ी शुरू से, या फिर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते होंगे. सो व्हाट वुड यू से व्हेन यू डिसाइडेड योर स्ट्रेटजी, और लेट्स से यू कॉपीड इट फ्रॉम समवन एल्स, या फिर आपने किसी और से इंस्पायर होके वो चीज इम्प्लीमेंट की, तो व्हाट आर दोज एलिमेंट्स या फिर और एग्जांपल्स और व्हाटएवर यू फील लाइक कि भाई एक सही स्ट्रैटेजी के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, या फिर ये चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, तब जाके यू विल बेसिकली बीट द रेस्ट ऑफ द क्राउड. जैसे कि विश्वास, मेरी बहुत लोगों से बात भी होती है एंड दे आर लाइक कि हमारे ना मार्क्स नहीं आ रहे मॉक में. तो उन लोगों के साथ इशू ये होता है कि वो स्टार्टिंग से दे आर फोकसिंग ऑन मार्क्स एंड स्कोर्स, और मेन वो मॉक्स पे बेसिकली दे आर रिलाइंग. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, मतलब उनको सिलेबस सारा पता है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस ही उतना नहीं किया, तो मॉक्स में मार्क्स नहीं आएंगे और उसके बाद दे गो बिहाइंड मार्क्स, जबकि वो एक्यूरेसी को बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं. फिर परसेंटाइल खराब आता है, मार्क्स खराब आते हैं, तो फिर डिमोटिवेशन होता है और फिर समझ नहीं आता, एंड दैट इज अ लूप. क्योंकि अगर आपने एक बार खुद को वो टाइमर के यूज टू नहीं किया, आपने प्रैक्टिस के यूज टू नहीं किया ना, तो वो फिर आप लूप में फंस जाते हो, यू आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द मार्क्स. ऐसा लगता है कि सब लोग कैसे कर पा रहे हैं. तो आई थिंक ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, कि डोंट रन बिहाइंड मार्क्स. और ऐसे मत दो कि हर दिन में आप 4-5 मार्क्स दे रहे हो, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है. फर्स्ट प्रैक्टिस, फर्स्ट हाफ में तो इतना ही रखो कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो. अगर आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो तो वो, और मेंस पढ़ रहे हो तो वो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एंड आई सजेस्ट दिस टू एवरीवन है ऑलमोस्ट, कि हर दिन इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि जब आप फिर मेंस के एग्जाम, आप मॉक में जाके बैठोगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपको पता हो कि ये चीज मुझे आती है, ये तो मैंने पहले की हुई है, कुछ नया नहीं लगना चाहिए आपको, आपके वो एलिमेंट्स पता हो कि हाँ ये ऐसी चीज है जिसमें मेरी स्ट्रेंथ है. और आई थिंक मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यही मिस करते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनका स्ट्रेंथ क्या है और उनका वीकनेस क्या है. सो आई थिंक बहुत अच्छे से आपने समझ किया. तो इसमें हाँ, मैं इसको थोड़ा और इलैबोरेट करता हूँ. तो होता क्या है, जैसे आपने बोला कि लोग मार्क्स के पीछे भागते हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है, देयर इज अ केमिकल कॉल्ड डोपामिन. तो वो जब भी मार्क्स अच्छे आते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जो हमसे पहले नहीं हो रहा था, तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर, आपको yes. बहुत अच्छा लगता है अंदर से, आप हैप्पी हो जाते हो. तो वो जो हार्मोन उस टाइम रिलीज होता है, दैट इज डोपामिन. बट इट कैन वर्क बोथ वेज. वो बहुत ज्यादा अडिक्टिव होता है. ये शायद हमें सोशल मीडिया पे यूज करने से बहुत मिलता है, फोटो पे लाइक्स आने से. तो ये सेम वही चीज है कि जो मार्क्स आते हैं, जब वो स्क्रीन पे दिखता है कि भाई इतने मार्क्स आ गए हैं और परसेंटाइल अच्छी बनी है, तो वो एक फीलिंग आती है. बट वो एक लिमिटेड टाइम के लिए रहती है और वो बहुत जल्दी गिर जाती है, क्योंकि लेट्स सपोज पहला मॉक जो आपने लगाया बहुत इजी था, सेकंड मॉक वैसा नहीं था, और सेम एग्जाम में आपके साथ ऐसा हो सकता है. हर एग्जाम में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कैसा आएगा. तो अल्टीमेटली वही जो नेट प्रैक्टिस जैसे क्रिकेटर्स करते हैं, वो नेट में बंद होते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये बॉल कहाँ जा रही है. मतलब जो आपको एक फील्ड में खेलने में मजा आता है कि आपने शॉट लगाया और वो आउट ऑफ द बाउंड्री या ये गया. सो दे आर एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग दैट हैप्पीनेस. नेट में प्रैक्टिस करने से उनको क्या पता लग रही है, प्रैक्टिस स्ट्रांग हो रही है, चीजें काफी कंसाइज्ड है कि भाई आपको कैसे परफॉर्म करना है. तो सेम वही प्रेपरेशन में होना चाहिए. मतलब प्रेपरेशन में यू विल हैव टू बेयर द पेन. मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा हर दिन, शायद आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है, बट यू विल हैव टू बेयर दैट पेन जस्ट फॉर दैट सिंपल रीजन कि जिस दिन आप कोई अच्छा मॉक लगाओ या एग्जाम में जाओ, सो उस दिन वो सारी चीजें आपको इजी लगने लगे, उस दिन आपको लगे कि आप हर सिचुएशन के लिए रेडी थे. सो आई थिंक दैट इज करिश्मा इज सेइंग. सो करिश्मा, थोड़ा सा आगे चलते हैं. वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट एवरीवन फेसेस इज कि पहले तो बच्चे कितने टाइम पहले प्रिपरेशन शुरू करते हैं, एक उसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं. फिर लेट्स सपोज नोटिफिकेशन आ जाती है, तब प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन का कॉम्बिनेशन थोड़ा बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है.
So generally जो लोग कहते हैं when I talk to toppers and people who have actually cracked exams कि they maintain a combination of both prelims and mains ताकि उनको mains के time पे उतनी problem ना आए. So did you also do the same? Do you have the same notion? Yes, actually starting में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट लेटर इनटू माय प्रेपरेशन आई रियलाइज्ड कि एक टू डू लिस्ट बनाना बड़ा जरूरी है. अदरवाइज टाइम का ट्रैक नहीं रहता है कि आपने कितनी देर क्या पढ़ा है. तो अगर टू डू लिस्ट होता है, आपके पास एक चेकलिस्ट है, तो उससे बड़ा इजी हो जाता है पूरा ट्रैक करना कि आज आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, आपने कितना किया उस चेकलिस्ट में से. और आई थिंक कि ये बड़ा जरूरी है कि आप अपना पूरा टाइम मैनेज करके चलो और इक्वल टाइम दो. ऑब्वियसली प्रीलिम्स को भी और मेंस को भी, लेकिन अगर मान लीजिए कि बिल्कुल एकदम हम लोग लास्ट में ही कर रहे हैं, जैसे अभी नोटिफिकेशन आया है उसके बाद, तो हमारे पास टाइम ही बहुत कम रहता है. और आई थिंक बहुत लोग इस एंजाइटी में बहुत हड़बड़ी कर देते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जस्ट नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट करते हो प्रेपरेशन, तो योर अल्टीमेट गोल शुड बी टू गेट सिलेक्टेड, नॉट टू क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. जैसे कि अभी हमारे पास आरआरबी के एग्जामिनेशन है, आईबीपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन है. अगर किसी ने बिल्कुल अभी शुरू किया है, तो हिज और हर अल्टीमेट गोल शुड बी कि मुझे इस साल में एग्जामिनेशन क्लियर करना है. बट बहुत एंजाइटी में ये होता है कि फिर वो प्रेपरेशन, वही वो लूप आ जाता है प्रेपरेशन में. लोग क्या करते हैं बेसिकली कि फिर उस एग्जामिनेशन के पीछे भागने के चक्कर में फिर वही होता है कि प्रैक्टिस ना करते हुए वो स्कोर्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं एस बी टॉप. तो यही एक मेजर रीजन है कि लोग. और एक और चीज मुझे विश्वास लगता है कि काफी आजकल बच्चे जो फेस कर रहे हैं हमारे एस्पिरेंट्स, वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि वीडियो से सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे मेंस है. उस टाइम जब हम वीडियो के साथ हम कर रहे हैं क्वेश्चंस, तब तो सब कुछ बहुत इजी लगता है. तब लगता है कि हाँ, ये टीचर जो बता रहे हैं हमें सब समझ आ रहा है. बट एक्चुअली जब हम करने बैठते हैं वो क्वेश्चंस, वो मॉक्स में आते हैं, तब हमसे वो होते ही नहीं है, क्योंकि हमने वो सेल्फ प्रैक्टिस का टाइम तो खुद को नहीं दिया ना. वो टीचर जो बता रहे थे बस हमने वो फॉलो किया. तो एक जो चीज वो भी है कि स्टडी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो उनकी रोज इंपॉर्टेंट है. तो वो कॉम्बिनेशन बिठाना कि आप वीडियोस भी देख लो, आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर लो, आप प्रीलिम्स भी करो और मेंस भी करो. अगर ये कॉम्बिनेशन किसी ने क्रैक कर लिया राइट, तो आई डोंट थिंक कि उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली है. एंड विद इन एन ईयर आई थिंक वो इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, जिस तरह का ये हमारा पैटर्न चल रहा है एग्जाम्स का. राइट राइट. तो करिश्मा ने आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही है, और मैं इसमें जो ऐड करूंगा कि आपको अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए. होता क्या है कि जैसे नोटिफिकेशन आई और लेट्स से अगले 20-25 दिन या 30 दिन में प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, तो आप अपने आप से चाहे अपनी कितनी भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लो या कुछ भी कर लो, आपको एक टाइम फ्रेम तो आपको देना पड़ेगा. कि जैसे करिश्मा ने बोला कि साल भर में आप अपना टारगेट शायद आपने बनाया, तो दैट इज गुड इनफ टाइम. साल भर एक अच्छा टाइम है. तो डिसअपॉइंट नहीं होना है कि भाई आपने 2 महीने तैयारी करी और फिर एग्जाम नहीं निकला. इट इज वेरी प्लॉजिबल कि नहीं निकले, बहुत लोगों का नहीं निकलता. इट इज ऑल पार्ट ऑफ द लर्निंग फेज. क्योंकि आपके जैसे और बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट दे रहे होंगे, तो उनकी जर्नी रही है. दे विल ऑब्वियसली बी मोर कंसिस्टेंट, दे विल बी मोर अवेयर कि एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है, कैसे चीजों को डील करना है. सो यू आपको डीमोटिवेट नहीं होना उससे. ठीक है, मतलब टाइम इतना नहीं भाग रहा है कि अगले 6 महीने में, एक साल में कुछ चेंज हो जाएगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना बेस्ट नहीं देना, कि आप बहुत ही लूज हो जाओ अपनी प्रिपरेशन को लेके, कि जो 30 दिन भी है उसको आप बहुत लाइटली ले लो. तो वो भी नहीं करना है. सो बट हाँ, यू शुड बी वेरी मच सेल्फ अवेयर कि आप कहाँ पर हो, आपके नेक्स्ट टारगेट्स क्या होने चाहिए रियलिस्टिकली, आप उनको कैसे हिट कर पा रहे हो, अपने आप को कितना जानते हो, अपने ब्रेन को कितना जानते हो, इंटेलेक्चुअली भी शायद और इमोशनली भी, कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो, रिएक्ट करते हो. तो आई थिंक दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है. तो करिश्मा, टेल मी दिस कि ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह है, मतलब यू वी ऑल हैव टू प्रिपेयर, वो तो हमें सबको समझ में आता है. बट देर इज अ माइंडसेट बैटल टू इट एज वेल. देर इज अ माइंडसेट बैटल एंड योर इमोशंस एज वेल. तो हाउ डू यू मैनेज दैट, या फिर व्हाट आर द थिंग्स यू वुड रेकमेंड कि ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि, बिकॉज व्हाट दिस रोल, ये जो माइंडसेट का जो रोल है, दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट फॉर यू, when you face failure, when
कुछ भी हो सकता है, मे बी नॉट जस्ट प्रिपरेशन वाइज, देयर कुड बी अदर एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो आपकी लाइफ में चल रहे हो, तो उसकी वजह से आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो, कुछ भी होगा। सो इन दैट फेज फिर आप अपने आप को कैसे संभाल के यू कीप गोइंग फॉरवर्ड? आई थिंक कि ऐसा बहुत बार होता है, एंड व्हेन आई स्टार्ट वेयरिंग, तो वो टाइम ऐसा था, इट वाज अ पेंडेमिक ईयर, बहुत सारी चीजें लोगों के साथ बहुत गलत हो रही थी, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को से मेरी बात हुई थी जो ऐसे थे कि उनको उसी दौरान कोविड हो गया एंड दे कुडंट गिव एग्जामिनेशन, जबकि वो बहुत ही ज्यादा रेडी थे उस एग्जामिनेशन के लिए, बट स्टिल दे कुडंट गिव एग्जामिनेशन। तो आई थिंक कि उस सिचुएशन में बस यही होता है कि जस्ट गो विद द फ्लो, और अपने आप को ना बहुत ज्यादा, चाहे आपकी कोई पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं या फिर आपकी खुद की मेडिकल इश्यूज कोई चल रहे हैं, जस्ट लेट इट बी फॉर दैट टाइम बीइंग, और उसको वहीं छोड़ दो। अगर बहुत ज्यादा खुद को पुश करोगे ना तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो सिचुएशन ठीक होने वाली है, ना अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना वो ठीक होने वाला है। तो उस टाइम के लिए आई थिंक कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करो एंड गिव योर सेल्फ टाइम। बहुत बार ऐसा होता है प्रेपरेशन के डेज में भी, जब शायद पढ़ने का मन नहीं करता फॉर वट एवर रीजन्स, तो मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ कि जब भी मेरे साथ ऐसा होता था, आई नेवर पुश्ड माई सेल्फ। अगर मुझे ब्रेक लेना है, आई वुड टेक अ वीक्स ब्रेक एंड आई न्यू कि हाँ, आफ्टर दैट आई विल बी फाइन एंड आई विल कम अगेन स्ट्रॉन्गर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड गिव योर सेल्फ प्रायोरिटी। एग्जाम्स ठीक है, एग्जाम्स जरूरी है, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये चीजें पहले खुद को प्रायोरिटाइज करके एग्जामिनेशन को बाद में सोचना चाहिए, और उसके बाद फिर कम बैक स्ट्रॉन्गर, और ज्यादा मेहनत करें उस टाइम में जितना टाइम फ्रेम हमने लिया है खुद को रिकवर करने में। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट एडवाइस। तो इसके अलावा व्हेन इट कम्स टू लेट्स से सेक्शनल preparation, so what were the subjects that you struggled with, what were the ones that were easy for you, and जो टफ थे तो उनको कैसे मैनेज किया, और जो इजी वाले थे तो मतलब बेसिकली हाउ डिड यू क्रिएट अ बैलेंस की अल्टीमेटली, बिकॉज होता यही है कि टू क्लियर द कट ऑफ और लेट्स से टू गेट सिलेक्शन, इट डजंट मीन दैट यू हैव टू टॉप द एग्जाम, यू हैव टू बी अ टॉपर, या बट यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ऑल द थ्री कि आप यू गेट योरसेल्फ थ्रू। सो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था आपका? एक्चुअली आजकल यही हो रहा है कि आपको सारे जितने भी सेक्शंस है उनको प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा। पहले ऐसा होता था 2-3 साल पहले कि अगर आपको एक सेक्शन नहीं आ रहा है, तो जैसे कि बहुत से लोग थे जो जनरल अवेयरनेस में इतना स्कोर कर लेते थे कि बाकी पूरे मार्क्स उनके कॉम्पनसेट हो जाते थे। बट आजकल हर एक चीज इतना स्ट्रैटेजिकली वो प्रिपेयर करते हैं एग्जाम में कि आपको हर एक में एवरेज तो स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी यू विल बी एबल टू क्लियर। तो मेरे लिए जो सबसे डिफिकल्ट था वो था मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स मैंने बहुत अच्छे से पहले भी नहीं पढ़ा था, और अब बहुत बीच में गैप हो गया था जब मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी, तो 5 साल से मैंने कोई मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ा था। बट आई थिंक कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि अपने बेस्ट को बेस्ट बनाओ, मेरा ये था कि मैंने अपने एवरेज, जो अपना लो था उसको एवरेज कर लिया था मैथमेटिक्स को, और बाकी मेरा स्ट्रेंथ जो था वो रीजनिंग था। एंड रीजनिंग आई थिंक सबका ही स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि सबको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, रीजनिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। और जो इंग्लिश वाज आल्सो माय, आई वुड से माय स्ट्रेंथ। बट इंग्लिश में कैसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि आप स्कोर करने जाते हो ना, इतने गंदे मार्क्स आते हैं कि वो बहुत डिमोटिवेट कर देता है। अगर आपकी स्ट्रेंथ है इंग्लिश और उसमें अगर बहुत कम मार्क्स आ जाए तो बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है। तो वही एक फैक्टर था कि हाँ, उसमें बैलेंस आउट करना था। और बाकी करंट अफेयर्स तो मैं, जैसे मैं बता रही थी कि मैं डेली लेके चलती हूँ, और मुझे रियलाइज हुआ कि करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, ना तो सिर्फ यहीं पर आपको इंटरव्यू में वो बहुत ज्यादा आपकी पर्सनालिटी में जो ग्रूम आता है उससे पूरा पढ़ के वो इंटरव्यू में झलकता है साफ साफ आपकी जो नॉलेज है। तो वो स्टार्टिंग से करना शुरू किया। तो आई थिंक यही रीजन है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन फर्स्ट क्लियर हो गया, इवन दो मैंने सेटबैक्स भी देखे हैं बहुत सारे। बट हाँ, जो फर्स्ट एग्जाम क्लियर हुआ उसका रीजन यही था कि मैंने हर एक चीज को प्रायोरिटाइज किया और अपने लोवेस्ट को भी एवरेज पर लेकर आई। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी भी टॉप सब्जेक्ट को आप बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं कर सकते। चाहे मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक हो, उसको भी आप कंप्लीटली निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर रीजनिंग है उसमें पजल्स को और मिसलेनियस को नहीं निग्लेक्ट कर सकते। इंग्लिश को तो कर ही नहीं सकते, 70% ऑफ द पेपर कंप्राइजेस ऑफ इंग्लिश, तो उसको तो आप बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड सिमिलरली विद करंट अफेयर्स, इट्स हेल्पिंग यू throughout your preparation and throughout your selection, or even after selection it is grooming your personality. So I think all the subjects have to be taken simultaneously. बिल्कुल। सो आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो अपना लोवेस्ट है उसको अपना एवरेज बनाओ, और जो आपका स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग कर लो। तो
बहुत लोग एक्चुअली इसी लूप में फंस जाते हैं कि वो अपना जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो उसी को प्रायोरिटाइज करते रहते हैं, और जो जिसमें आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो उसको आप नेग्लेक्ट करते हुए चले जाते हो, बेसिकली क्योंकि वो आपको अच्छा फील नहीं कराता। क्योंकि जब आप उसके लिए नहीं प्रिपेयर करता। करते हो, आप मॉक्स लगाते हो, सेक्शनल मॉक्स लगाते हो, तो आपको वो चीज़ टफ लगती है, या फिर उससे आपका मूड खराब होता है। तो आप एक दिन Right. करोगे, 2 दिन करोगे, फिर तीसरे दिन आपको लगेगा कि नहीं यार, जो अगर इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश कर लिया, रीजनिंग पसंद है तो इंग्लिश कर। रीजनिंग कर लिया। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर तो कभी सिलेक्शन मेरे को नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि हो पाए। तुक्केबाजी तो नहीं चलेगी उस दिन की। आप उस दिन अगर क्वांट आपका वीक था तो आप क्वांट में तो क्या ही तुक्के लगाओगे। सेम गोज विद लेट्स से फॉर करंट अफेयर्स, जीए और इंग्लिश। सो पॉइंट इज कि कीप अ बैलेंस। ठीक है, आपका जो वीकेस्ट सेक्शन है उसमें आपको उतना नहीं स्ट्रॉन्ग शायद आप हो पाओगे जितना आपका कोई और सेक्शन है। अगर उसमें आप 30 या 35 पूरे स्कोर कर सकते हो तो मे बी शायद उसमें नहीं कर पाओगे, बट इफ यू कुड रीच टू 25-20, that's again a very big push in your overall score. तो मतलब आप कट ऑफ पे बेसिकली, if let's say the cut off is 85 और आप 70 या 72 ही स्कोर करते हैं, but because you increased your lowest to an average, let's say in a couple of sections, तो obviously वो स्कोर आप शायद 85 के ले जा सकते। आगे। सो इट मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स कि आपको अपना जो ओवरऑल टोटल स्कोर है वो कैसे बढ़ाना। सो दैट्स द वे टू गो। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को आज। तो करिश्मा, बाकी लेट्स decode. Do you feel the difference कि क्योंकि there are set of exams that you are giving, आप किसी एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो in 99% of the cases। आप एसबीआई के लिए भी करते हो, आईबीपीएस के लिए भी करते हो, और आरआरबी के लिए भी करते हो। सो डू यू थिंक कि देयर इज अ लाइन बिटवीन देम, या फिर एसबीआई इज द टफेस्ट और आरआरबी इज द इजीएस्ट? हैव यू एनकाउंटर्ड सच अ थिंग, या फिर यू फील कि प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट, तो उस केस में जो बेस्ट होगा आपको मिल ही जाएगा? I lost the connection. Your question was? Yeah, I was saying कि in your preparation journey, because हर कोई एक एग्जाम के लिए तो तैयारी नहीं कर रहा है, there are different set of exams, Right. SBI, IBPS, RRB. So did you ever feel कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करना है या उसको प्रायोरिटी बनाना है, या फिर यू फेल्ट कि किसी एक एग्जाम जो टफेस्ट एग्जाम है उसके लिए सारी अपनी एनर्जी लगाओ, बाकी सारे इजीली फिर अपने आप इट विल कम इन योर वे? So yeah, I think we have covered a lot of things today. तो I am hoping कि इससे बहुत लोगों को help मिलने वाली है. And so last would be Karishma, how did you find practice forms? Because you have used as a platform for your preparation, PM. So what are your thoughts about practice mock per se? Actually, how did I find practice mock? तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देखती थी। सारे जितने भी टॉपर्स थे मैंने ऑलमोस्ट पूरे यूट्यूब पे सबके इंटरव्यूज देख डाले थे वहां पर जब थे। और मेरा जो पास टाइम होता था वो भी यही होता था कि मैं उनके इंटरव्यूज देखूं, बिकॉज दे वर रियली मोटिवेटिंग और कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिलती थी। तो ऐसे ही बहुत से लोग थे, एंड फिर उसके बाद मैंने उनको पर्सनली मैसेज किया टेलीग्राम पर। तब सबका रिकमेंडेशन ऑलमोस्ट सेम था कि आपके पास जो भी मॉक है वो लो, बट प्रैक्टिस मॉक भी रखना साथ में। एंड दैट वर्क फॉर मी एज वेल। उससे पहले आई वाज नॉट यूजिंग प्रैक्टिस मॉक। उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस मॉक देना शुरू किया फॉर माय आरआरबी एंड एसबीआई, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, देयर इज अ डिफरेंस। यू नो, आपको वो एग्जाम लेवल और एग्जाम रेलेवेंट स्टफ मिलता है। एंड दैट्स व्हाट आई टेल ऑल माय एस्पिरेंट्स कि वो एक आपकी बकेट में वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि बाकी आप कितना भी डिफिकल्ट या इजी दे लो, लेकिन जब आपका मन करे ना कि आपको एग्जाम रेलेवेंट देना है बिल्कुल एग्जाम आने से 10-15 दिन पहले, तो गो फॉर प्रैक्टिस मॉक। तो आई थिंक जो प्रैक्टिस मॉक का एक यूएसपी है वो यही है कि इट इज बिल्कुल एग्जाम लेवल। सो या थैंक यू फॉर दैट। So I think यहाँ पे हम sum up कर सकते हैं. I think we have covered most of the things. So thank you so much, Karishma, for joining with me today. It was a great pleasure interviewing you. And one thing that I want to add yeah, last, sure. if you allow me. Yeah, sure. Yeah. तो
my suggestion to all the aspirants is that इवॉल्व करो. जितना आप देख रहे हो ना ओवर द टाइम जो हमारा एग्जाम इवॉल्व हो रहा है, तो खुद की प्रेपरेशन भी और खुद की स्ट्रैटेजी सब इवॉल्व करो. जैसे आपका एग्जाम चेंज हो रहा है उस तरह से उसी सेम लूप में घुसने की जरूरत नहीं है. अगर कोई आपके लिए कोई टीचर या कोई स्ट्रैटेजी या कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है ना, तो एक बार स्टेप बैक होके देखो और एनालाइज करो कि कहाँ आप फंसे हुए हो, क्या चीजें आप गलत कर रहे हो और क्या वो लोग ठीक कर रहे हैं जो अपना सिलेक्शन ले रहे हैं. तो अगर आप ये चीज एनालाइज कर लोगे ना, तो आई थिंक कि मोस्ट ऑफ इश्यूज आपके वहीं सॉल्व हो जाएंगे. उसके बाद आप राइट डायरेक्शन में जाओगे. तो ये एग्जाम्स बहुत डुएबल है, और जिन लोगों का नहीं हो रहा उनको यही लगता है कि ऐसा क्या है जो हम मिस कर रहे हैं. तो जब आपको ये लगे कि हम क्या मिस कर रहे हैं, तो 2-3 स्टेप पीछे होके बस वो एनालाइज करने की कोशिश करना, आपको अपना राइट पाथ वहीं मिल जाएगा. So that is my suggestion. Yeah, so I think you have brought it to a very positive note. So yeah, I think this is something we should do. We all should adapt. Life में भी करते हैं, तो similarly exams के case में भी वो होता ही है. तो yes, keep upgrading, keep evolving yourself, and whatever helps you with it, उस चीज को साथ में लेना चाहिए. So that's a great message. So again, thank you so much, Karishma, for joining with me today. And this interview will Thank you for inviting. Yeah, it was a pleasure. It was a pleasure. Okay, thank you so much. Okay.